Good evening, students. Today I would like to discuss the last chapter of your NCERT, that is consumer rights. When I am going to discuss the last chapter, one questions may be arising in your mind. Why ma'am has not discussed the third chapter and directly ma'am went to the last chapter? The reason is that you know that from CBSE the demand is there. We need to develop the project file for your board evaluation. So for that board evaluation we need to complete the project beforehand. That's why after completion of the 2 chapters, that means for your half yearly I have already completed 2 chapters, okay, up to your half yearly, and the last chapter will be for your project, development of the project. Okay, so in a nutshell I just wanted to give you the brief idea. Why brief idea? Because that you need to make the research work to make the project over it. What overall the theme of that chapter is containing, that I will discuss today. If you want to get the detailed idea, you read your book once, that chapter, then you find out from the net, then only you can able to develop the project file. Fine. The flap sheet, flap sheet which you are project file sheet which you are using, through that you will be going to develop your project. You know that the for project we need to make the cover page according to the consumer right, and after cover page the acknowledgement, then after the acknowledgement the index, you will make the index, means content, index or content of the topic is consumer rights, okay, whatever contents are there that you will be that you will cover, and after that you will write the conclusion, fine, and after conclusion you will write the bibliography, means from where you have got that material. This is all about your acknowledgement, index or content. One certificate page is also there. If you develop, that is better. You can also develop a certificate page. Certificate. Fine. Fine. And here you will do the paging for each one. Okay. And the cover page where you are making the consumer rights, depending upon your topic, you need to decorate your cover page, not like the childlike decoration, please don't do. Okay, consumer rights means you show some product which the consumer are using, or some monograms, or like Jagograph Jago, like that you will make the cover page. Okay, and or you can make the like that old in the court you have seen एक लेडी जो 2 तरह का वेट सिस्टम जो रहता है तराजू लेके, मतलब कंज्यूमर को कैसे राइट जस्टिस दिया जाए, वो जस्टिस की मूर्ति कैसी होती है आपको देखा है ना, वो भी लगा सकते हो सामने, और उसके बाद गाइडेड बाय अ सबमिटेड, आपका नाम, your name, cover page में ही, in the cover page only you will write your name, class, sections, and guide name, like I am teaching, so I am your guide, my name, SASHI Sashikala Panda, this is my name, economics teacher. Okay, in this way you will make. Okay, this is all about the cover page. Now come to the topic. What we are going to discuss about this consumer rights. Let me to tell you in a brief. I will say in the maybe it will take 1 or 2 video, in 1 or 2 video about whole the chapter, what is content, that I will say. Okay, you know who is a consumer? Can you tell me who is a consumer? Consumer is a person who is consuming the goods and services for the satisfactions of the wants. अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर बोला जाता है.
ये कंज्यूमर मार्केट प्लेस में बहुत वे में एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। कैसे एक्सप्लॉइट होता है? कभी सेलर उसको अंडरवेट देता है, कभी एडल्ट्रेड गुड्स देता है, मतलब नकली चीज़ सारा मिला देता है। वनस्पति अगर घी खरीदने जाओ तो उसमें डालडा मिला देता है, चावल में कंकर मिला के बेचता है, दैट इज़ कॉल्ड एडल्ट्रेशन, ओके। सो गिविंग समटाइम गिविंग अंडरवेट, समटाइम आस्किंग मोर दैन द MRP, sometime giving the duplicate product, sometime giving the underweight product, okay. So by all these way the consumer sometime getting exploited in the marketplace by the seller or by the producer, and for a long time this consumer getting exploited. Why? Because there was no legal system which can protect the rights of the consumer. हमारे कंट्री में कोई लीगल सिस्टम था नहीं जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट हो रहा है मार्केट में तो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो इनिशियली कंज्यूमर लोगों जब एक्सप्लॉइट होते गए तो कुछ कंज्यूमर ग्रुप्स क्या किए, अपना फोरम बनाए, कंज्यूमर फोरम, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ऑर्गेनाइजेशन बना के वो लोग क्या किए, अपनी एजुटेशंस फॉर्मल वे में 1960s 70s में फॉर्मल वे में वो अपना 1960s और 1970s में फॉर्मल वे में वो अपना एजिटेशंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रोड्यूसर और सेलर दे स्टार्टेड। जैसे कोई आर्टिकल लिख के न्यूज़पेपर में दे के कि इस तरह इस जगह का सेलर एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, इस जगह का सेलर इस तरह का एडल्ट्रेट गुड बेच रहा है, या मोर दैन द MRP दे आर आस्किंग। कभी कभी किसी की जगह पे होर्डिंग पोस्टर लगाया गया, आर्टिकल कंज्यूमर्स ग्रुप सारा लिखे, कभी कभी जगह तो एजुटेशंस किए, मतलब बड़ा बड़ा पोस्टर लेके स्ट्राइक करने निकल गए। इस तरह 1960s 70s से फॉर्मल वे में कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट। वाई? अगेंस्ट द अनएथिकल एंड unethical practice of the seller or the traders, okay. So against the unethical or ethical trade practice made by the seller, in a formal way in 1960s or 70s the consumer has started their movement in our country. ऐसे हमारे कंट्री में कंज्यूमर और भी बहुत तरह का वे है, जैसे सेलर बहुत तरह का वे है, जैसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे थ्रू द एडवर्टाइजमेंट अगर तुम लोग देखे हो उसमें भी बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइडेड करते हैं लोगों को। जैसे डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी ले रहा है और इतना जोर से जंप कर दे रहा है एक हिल से दूसरे हिल, पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट करता है इस तरह का एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट दे के फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बहुत दिन तक जो बेबी मिल्क पाउडर, आजकल जो अमूल स्प्रे वगैरह हम कहते हैं, तो देखना अमूल स्प्रे में सब में लिखा होता है डिब्बा मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी। लेकिन बहुत दिन तक वो लोग डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे, वो लोग बोलते थे कि दिस मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी, उसके ऊपर नहीं लिखा जाता था कि मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी। बहुत दिन लग गया ये कन्विंस करवाने के लिए उनको कि ये सब मिल्क से मदर मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। फिर वो लोग कन्विंस हुए, वो सेलर्स और द प्रोड्यूसर, फिर डिब्बे में लिखे कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। इसी तरह सिगरेट कंपनी वाले बहुत दिन तक सिगरेट बेचते रहे और सिगरेट की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में कुछ नहीं लिख रहे थे। लेकिन सिगरेट लीड्स टू कैंसर, ये प्रूफ होने के बाद बहुत दिन लग गया है उनको कन्विंस करने के लिए कि पैकेट में लिखो, सही इन्फॉर्मेशन दो, तो कि कंजम्पशन ऑफ द सिगरेट्स विल लीड टू द कैंसर। तो आजकल देखना हर सिगरेट के पैकेट्स में ये लिखा रहता है, ठीक है। सो समटाइम थ्रू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो द कंज्यूमर आर गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कंज्यूमर गेट एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो हमारा यहाँ कोई, क्या बोली मैं, हम लोग का यहाँ कोई ये नहीं था, कोई लीगल सिस्टम नहीं था जहाँ कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर कंज्यूमर इंटरनेशनल बना, यूनाइटेड नेशन कंज्यूमर इंटरनेशनल। आपकी बुक में ये वाला आप प्रोजेक्ट फाइल में बना सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर इंटरनेशनल बना। UN गाइडलाइन 1985 में यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द UN गाइडलाइन एंड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और एक गाइडलाइंस बनाए
कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्शंस किया जा सके। 1985 में क्या बनाया यूएन गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर वो गाइडलाइंस सारा कंट्री, वहाँ एक अम्ब्रेला बॉडी बना यूएन गाइडलाइंस में। अम्ब्रेला बॉडी में जो यूएन गाइडलाइन इंटरनेशनल लेवल में बना, जिसमें क्या था, कंज्यूमर इंटरनेशनल में इट इज़ अ अम्ब्रेला बॉडी, 240 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 100 कंट्रीज रिमेन अंडर द अम्ब्रेला बॉडी। इस जगह पे आप क्या करोगे, एक इस तरह का अम्ब्रेला बना लेना, अम्ब्रेला बॉडीज़ बोला है, इस तरह का अम्ब्रेला बना लेना, और यहाँ बहुत सारा 240 ऑर्गेनाइजेशन, 200 ऐसा बहुत सारा लोगों का पोस्टर बना लेना, जिसे और लिख देना यहाँ 240। इस तरह बहुत सारा लोग रहेंगे, 240 ऑर्गेनाइजेशन अभी है। ठीक है, ठीक है। जैसे यूएन गाइडलाइंस दे दिया तो सारा कंट्री उस गाइडलाइन को फॉलो करके अपना अपना एक्ट बनाए, मतलब लीगल सिस्टम को डेवलप किए टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। In our country also, by following the UN guidelines, consumer to protect the consumer, we have developed the COPRA. COPRA means Consumer Protection Act. कब बना? 1986 में Consumer Protection Act, which is in short known as COPRA. ठीक है। उसके बाद आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में लिखा गया, मतलब उसमें बहुत सारा स्टोरी दिया गया है, जहाँ आपको बताया गया स्टोरी के थ्रू कि कैसे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। और कोपरा बनने के बाद जब एक्सप्लॉइट हुआ, कोपरा का हेल्प लेके कंज्यूमर कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट में गया और अपना एक्सप्लॉइटेशन से अपने आप को बचाया। इस कोपरा में 3 लेवल का कोर्ट रहता है। कोपरा हमको 3 लेवल ऑफ कोर्ट दिया है, क्वासी जुडिशियल सिस्टम जिसको बोलते हैं। कोपरा COPRA, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19 कब हुआ? ये बना 1986 में, जबकि यूएन गाइडलाइंस का बना था 1985 में। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद 3 क्वासी जुडिशियल सिस्टम बना इसमें, क्वासी जुडिशियल सिस्टम बना, जिसमें 3 कोर्ट बना, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, एक स्टेट लेवल का कोर्ट, एक नेशनल लेवल का कोर्ट। कितना अमाउंट के हिसाब से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस लेवल की कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर इफ़ द डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट किसके अंदर, कंज्यूमर और सेलर, इसके अंदर अगर डिस्प्यूट 20 लाख का है, ध्यान देना अच्छे से, 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम डेवलप्ड थ्रू द कोपरा टू रिड्रेसल द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। तो डिस्प्यूट, कंज्यूमर को डिस्प्यूट या ग्रीवेंसेस को संभालने के लिए 3 कोर्ट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोर्ट जो है वो 20 लाख तक अगर डिस्प्यूट है, कोई आदमी को 20 लाख तक नुकसान पहुंचाया है कोई कंज्यूमर को, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है अपना प्रॉब्लम लेके। ठीक है, 20 लाख से अगर किसी को 20 लाख से और ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, अगर इस तरह का मामला हुआ तो ये कैन गो टू द स्टेट लेवल। अब मोर देन 1 करोड़ होने से दे कैन गो टू द आपका नेशनल लेवल कोर्ट में। ऐसे भी किसी आदमी को मान लो स्टेट लेवल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में कोई वेरिडिक्ट दिया गया, वेरिडिक्ट मतलब सुनवाई किया गया कोर्ट का, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है उस वेरिडिक्शन से, दे कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। फाइन, जैसे हमारे कोर्ट में खाली इंडिया एक कंट्री है या कंज्यूमर के लिए स्पेशल कोर्ट है, अदरवाइज बाकी सारा कंट्री में जो हमारा लीगल कोर्ट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रहता है, वहाँ कंज्यूमर का भी कोर्ट की सुनवाई होती है जो भी मामले होते हैं, लेकिन इंडिया में कंज्यूमर के लिए सेपरेट कोर्ट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट। फाइन, तो इस हिसाब से कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिया गया। क्या क्या राइट्स दिया गया? राइट्स टू सेफ्टी, मेनली 5 राइट के बारे में आप लिखोगे। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, right to seek redressal, okay, and
लास्ट वन इज राइट टू रिप्रेजेंट। ये सारे राइट्स के बारे में आपके बुक में एक एक करके स्टोरी दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट हुआ है, और एक्सप्लॉइट होने के बाद कैसे वो कोर्ट में गया है और कोर्ट से उसको जस्टिस मिला है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आपको ये याद रखना होगा, हमारा कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ राइट्स दिया है, राइट के साथ साथ कंज्यूमर की ड्यूटीज़ भी है। पहले तो कंज्यूमर अपना ड्यूटीज़ के साथ राइट के साथ साथ, जैसे राइट को वो क्लेम करता है ऐसे ड्यूटी को उसको मानना होगा, तब जाके वो राइट को क्लेम कर सकता है। ठीक है, पहला ड्यूटी तो राइट के बारे में जानना ही है कि हमारे लिए क्या राइट्स है, और अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमारा राइट्स ड्यूटीज़ ये बनता है कि इस एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम अपना आवाज़ उठाएं, हम लीगल शेल्टर लें। ठीक है, पहले अपना बुक में दिया गया है आपका, यहाँ एक स्टोरी दिया गया है, मैं शॉर्टकट में सारा स्टोरी बोलते जा रही हूँ। आपका पहले स्टोरी है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में रेजी बोल के एक लड़का है, रेजी मैथ्यू। ही वॉज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ही वॉज हैविंग टॉन्सिलाइटिस एंड ही वेंट फॉर द ऑपरेशन इन ए प्राइवेट क्लिनिक। प्राइवेट क्लिनिक में एक प्राइवेट सर्जन उसका टॉन्सिलाइटिस के, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, उसके ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के वक्त उसको एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब सेंस आया उसका, देखा गया ये तो सही हो गया जो टॉन्सिलाइटिस था, लेकिन कुछ मेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ दिखाई दिया उसमें। तो उस फादर क्या किए, देखे कि ये मेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है लाइफ लॉन्ग ये एब्नॉर्मलिटीज़ रहेगा, दैट मीन्स रेजी मैथ्यू क्रिपल्ड फॉर द लाइफ लॉन्ग। तो रेजी मैथ्यू के फादर उस प्राइवेट क्लिनिक के अगेंस्ट में लगाए, केस कर दिए। कहाँ? कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशंस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और वहाँ क्लेम किए कि मेरे को 5 लाख की कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है और डेफिशिएंसी हुआ है। तो जब वो बात बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। क्यों एविडेंस नहीं है? क्योंकि रेजी मैथ्यू के फादर को दिखाना होगा कि सारा जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो दवाई है, कौन सा डॉक्टर किया है, कौन डॉक्टर एनेस्थीसिया दिया है, वो सारा डॉक्टर का सब कुछ दिखाया। वो हो सकता है कुछ एविडेंसेस कम है, जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया कि ये तो 5 लाख नहीं मिलेगा। तो फिर वो स्टेट लेवल के कोर्ट में गए, स्टेट कमीशंस को। स्टेट कमीशंस पे रेजी मैथ्यू का जो एविडेंस दिए उसको बोले कि ये एविडेंस सफिशिएंट है, और रेजी मैथ्यूस को पापा को सपोर्ट किया वे कोर्ट अपना वेरिडिक्ट में। और फिर उसको बोले, जो प्राइवेट क्लिनिक को, उसको बोले कि तुम 5 लाख का कंपनसेशन दो क्योंकि दिस इज़ योर मेडिकल नेग्लिजेंस वाइल डूइंग द ऑपरेशन, क्योंकि एनेस्थीसिया अमाउंट ज़्यादा दे दिया था जिससे उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हुई। तो दिस राइट टू सेफ्टी, यहाँ इसका कौन से राइट वायोलेशन हुआ? हियर द राइट टू सेफ्टी गेट वायोलेटेड। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? राइट टू सेफ्टी मीन्स, लिसन, द प्रोड्यूसर नीड टू, ध्यान देना अच्छे से, there are many goods and many services that we purchase that require special attentions for safety. Fine. So right to safety means we need to just a minute. Right to safety means the consumer having the right to get the safety element, means the consumer is having the right to get protected from the goods and services which they are consuming. Means जो goods and services they are consuming, from that goods, consumption of that goods and services, they has the right to get protected. ठीक है, like प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, गैस सिलेंडर, ये सब सेंसिटिव चीज़ है। ये सब चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं, अगर एक्सीडेंट हो सकता है कि ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आइटम्स है। अगर थोड़ा भी सेफ्टी एलिमेंट्स को गाइड करते हुए प्रोड्यूसर उसको नहीं बनाया,
तो हो सकता है ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो राइट टू सेफ्टी यहाँ वायोलेशन हो जाएगा। वायोलेशन होगा तो कोर्ट में जाके और उसकी वायोलेशन के बारे में कर सकता है केस। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊंगी राइट टू सेफ्टी के बारे में। जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे, एक केस हिस्ट्री आपका बुक में जो दिया है उसको छोड़ के आपको नेट में सर्च करना होगा। नेट में सर्च करोगे, सर्वे करोगे, उसके बाद कोई एक वायोलेशन कोर्स देखना, बहुत जगह पे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है या आपका प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो रहा है, इसके बारे में बहुत जगह पे दिया होगा। एक केस स्टडीज़ यहाँ लगाना होगा आपको, उसकी ड्राइंग कुछ आप हाथ में पेंट करो या कुछ पेपर क्लिपिंग निकालो और उसको पेस्ट करना, ठीक है। ये हो गया राइट टू सेफ्टी के बारे में। तो इस राइट टू सेफ्टी की जगह पर राइट ड्यूटीज़ भी है कंज्यूमर का। क्या कंज्यूमर का ड्यूटीज़ है? कंज्यूमर का ये ड्यूटी कि इस तरह का अगर एलिमेंट कंज्यूमर खरीदता है तो कंज्यूमर को देखना होगा कि ये सब सर्टिफाइड आइटम है कि नहीं। सर्टिफाइड मतलब स्टैंडर्ड आइटम है कि नहीं। स्टैंडर्ड आइटम किससे पता चलेगा? मतलब प्रेशर कुकर में ISI मार्क होना चाहिए, ISI मार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर में ISI मार्क होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन में ISI मार्क होना चाहिए। कम से कम कुछ कुछ जो सेंसिटिव आइटम्स है उसको खरीदने से पहले ये कंज्यूमर का ड्यूटीज़ भी बनता है कि कंज्यूमर देखे कि ये सब सर्टिफाइड आइटम हो। दिस इज ऑल अबाउट राइट टू सेफ्टी। ना कम टू द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, नहीं सेकेंड वन राइट टू चूज़ में आते हैं। राइट टू चूज़ क्या है? राइट टू चूज़ है कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारी कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो कौन सा चीज़ खरीदेगा। उसको कोई कंपल्सन नहीं करना चाहिए प्रोड्यूसर, ओके। द सेलर कैन नॉट कंपेल द कंज्यूमर टू परचेज समथिंग, बट नाउ डेज दे आर कंपेलिंग। लाइक अगर हम गैस सिलेंडर की कनेक्शन लेने जाएंगे तो गैस सिलेंडर वाला बोलता है कि यू नीड टू बी परचेज ए स्टोव, गैस स्टोव फ्रॉम अस। इफ वी आर गोइंग टू परचेज द टूथब्रश, they are telling no, if you will take the paste then only you will be get the brush in a combo. In that way they are compelling us. That should not be done because the court has already, the legal system is there in our country that the seller cannot compel us or means cannot compel the consumer to purchase any item under compulsion, okay. Only according to the wish of the consumer can purchase. Nobody can compel the consumer. दैट इज़ अबाउट द राइट टू चूज़, ठीक है। उसके बारे में भी आप देख लेना, कुछ कुछ केसेस अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल उसमें दे देना। खास करके उसमें मिलता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, नेट में सर्च करोगे तो यू कैन एबल टू गेट इट, ओके। ना कम टू राइट टू इन्फॉर्म्ड। राइट टू इन्फॉर्म्ड मतलब देखना, हम कोई भी चीज़ खरीदते जाते, राइट टू पहले राइट टू इन्फॉर्म का मतलब क्या है? राइट टू इन्फॉर्म का मतलब है इट इज़ द सेलर ड्यूटी और द प्रोड्यूसर ड्यूटी। It is the producer duty mainly. Producer duty that while the producer is producing anything, then about that product, everything should be mentioned in the packet of that product. अब देखो पैकेट में लिखा रहता है, जैसे मेडिसिन खरीदने जाओ तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या डायरेक्शन ऑफ यूज़ है, ये सब के बारे में लिखा रहता है। कितना बार खाना है, अपने से लेना है कि डॉक्टर की सुपरविज़न से लेना है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से लेना है, वो सारा भी बताया जाता है। कोई वॉशिंग क्लोथ्स, कोई कपड़ा खरीदने जाओ तो उसकी वॉशिंग के बारे में उसके डायरेक्शन दिया रहता है कि ड्राई क्लीन है, ये प्लेन वाटर में क्लीन है, इसको धूप में सुखाना है कि नहीं सुखाना है, उसके बारे में दिया रहता है। कोई हेयर डाई खरीदने हम लोग जाते हैं तो उसके बारे में बोला जाता है कि पहले कान के पीछे लगाओ, सेंसिटिव है कि नहीं, आपको कोई जलन महसूस हो रहा है तो फिर मत लगाना, है ना। ये सब डायरेक्शन दिया रहता है। सो अबाउट द और क्या क्या रहता है डायरेक्शन में, राइट टू इन्फॉर्म में क्या क्या रहता है? डायरेक्शन ऑफ यूज़ रहता है, ingredients use, ingredient what the goods contain, that is there, MRP what should be the maximum retail price, that is there, what is the extra tax, that is there, what is the manufacturing date, that is there, what is the expiry date, that should be there. So all these should be remain present in the packet, and that is the duties of the producer to keep all the information, detailed information about the product to the consumer, and it is the right of consumer to get that information, okay. Sometime suppose we purchase that product and we have not seen, that means we have violated our duties, हम लोग ड्यूटीज़ नहीं किए हमारा। तो क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हम लाते हैं और देखते हैं वो एक्सपायरी है, उसको कंज्यूम किए और उसके बाद कुछ
प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बहुत सारा जगह पे आप देखे होंगे, मेडिसिन वगैरह लोग खरीदते हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से जाके लेके आ जाते हैं, कोई रिसिप्ट भी ले लेते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं और उसको खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बहुत सारा इशूज़ आपको नेट पे मिल जाएगा। यू गो थ्रू एंड यू विल फाइंड इट आउट। ओके, आज जहाँ एक्सीडेंट हुआ है ये सब करने के बाद और उसके बाद आप कोर्ट में गए हो और उसको कंपनसेशन मिला है, उसके बारे में यहाँ आपका दिया गया है। एक अमृता के केस के बारे में, अमृता का सर्विसेज के बारे में है। मतलब अमृता एक लड़की थी, इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट थी और वो अपना एक इंटरव्यू दी थी। इंटरव्यू उसका अच्छा गया था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दी थी। रूटीन और इंटरव्यू उसका दोनों अच्छा गया था। इसमें उसको लगा था कि उसकी रिज़ल्ट निकलने के बाद उसको मिल जाएगी जॉब, लेकिन बात ये हुआ कि ना रिज़ल्ट निकला ना उसको बताया गया कि वो क्वालिफाई है बोल के। रिज़ल्ट निकला ही नहीं तो क्वालिफाई बोल के कैसे पता चलेगा। बहुत दिन तक उसको रिज़ल्ट जब नहीं आया तो राइट टू इन्फॉर्म, आपका आरटीआई एक्ट आपके बारे में पता है आपको, तो आरटीआई एक्ट जो 2005 में हुआ था, शायद एक बार देख लेना, 2005 में ही हुआ था। आरटीआई एक्ट की मदद ली, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और उस मदद से वो केस कर दी। क्या केस कर दी कि मेरे को अभी तक मेरा रिज़ल्ट के बारे में क्यों नहीं, मैं सच मतलब मैं चूज़ हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ उसके बारे में मेरे को जानने का अधिकार पूरा है। आपको मेरा रिज़ल्ट की इतना देर नहीं करना चाहिए, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे ही केस कर दी अमृता कंज्यूमर कोर्ट में, तो साथ साथ उसको वहाँ से आंसर आ गया, क्योंकि जैसे केस की उसको अमृता बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसको जॉब मिल जाएगा। तो अमृता गई और उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया और उसके पास कॉल लेटर भी आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। डिक्लेयर सारा बच्चों का रिज़ल्ट भी निकल गया अमृता के चलते, और अमृता को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया कि यू हैव सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट राइट टू इन्फॉर्म। नाउ कम टू राइट टू चूज़ के बारे में भी एक दिया गया है। राइट टू चूज़ में कोचिंग सेंटर के बारे में दिया गया है। कोचिंग सेंटर में अभिरामी बोली एक लड़की है, राइट टू चूज़ में दिया है कि जैसे तुम्हारा फिटजी वगैरह में आप लोग पढ़ने जाते हो, 2 साल का पैसा एक ही साथ दे देते हो, देने के बाद आपको 1 साल में अच्छा फैकल्टी दे देता है, दूसरा साल में अच्छा फैकल्टी नहीं देता है, तो आपको लगता है कि वी शुड विड्रॉ, तो आप बोलते हो कि मेरा बाकी पैसा आप रिफ़ंड कर दो। ऐसा अभिरामी भी बोली। अभिरामी एक लड़की है, 1 साल पढ़ी, उसका कुछ पेमेंट वो दी थी कि कुछ 61,020 रुपीज़ वो दी थी। उसके बाद वो बोली जाके कि 1 साल पढ़ ली, दूसरे साल जब सेटिस्फाइड नहीं हुई बोली कि मेरा 28,000 बनता है नेक्स्ट साल का, मेरे को रिटर्न दे दो। तो उसको रिटर्न नहीं दिया कोचिंग सेंटर वाला, और बोला कि उसको तो बोला गया था वंस द फी विल बी टेकन देन इट विल बी नॉट रिफंडेबल, तो नहीं दिया जाएगा। तो अमृता फिर क्या किया, अभिरामी कोर्ट का सहारा ली और जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की कि मेरे को 28,000 की रिटर्न चाहिए। तो जब 28,000 वो मांगने गई तो कोर्ट उसको बोल दिया कि 28,000 उसको दो। तो कोचिंग सेंटर वाला को लगा कि एक बच्चे को अगर हम कोर्ट की वेरिडिक्ट सुन के हम दे देंगे तो सारे बच्चे तो ऐसे मांगने लगेंगे। तो वो क्या किया, फिर स्टेट लेवल कोर्ट में कोचिंग सेंटर वाला गया और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट का वेरिडिक्ट था, वो स्टेट लेवल कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया कि हम नहीं देंगे। तो स्टेट लेवल कोर्ट भी कोचिंग सेंटर वाला को ही गिल्ट सब माना और बोला क्योंकि तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट की बात नहीं सुने और गिल्ट होते हुए भी उसको 28,000 नहीं दिए, कोर्ट का टाइम भी बर्बाद किए, तो आप खाली 28,000 नहीं दोगे, 28,000 भी दोगे, उसके बाद कोर्ट का टाइम लॉस किए तो 25,000 तुम्हारे ऊपर और चार्ज किया जाता है और 7,000 और ज़्यादा दोगे उसके लीगल जो अभिरामी को खर्चा आया है। क्यों? क्योंकि अभिरामी के पास राइट था कि वो चूज़ करे, पहला ईयर वो चूज़ किया, सेकंड ईयर आपको चूज़ नहीं किया। तो अभिरामी का ड्यूटीज़ बनता है, नहीं सॉरी, अभिरामी का राइट्स बनता है कि उसको वो अगर चाहे तो दूसरा साल आपके पास कंटिन्यू करे, अगर नहीं चाहे तो नहीं कंटिन्यू करे। तो उसका अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसकी राइट टू चूज़ आप वायोलेट कर रहे हो। ठीक है, इस तरह बहुत सारा केसेस आपको, ये वाला आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, आप अपना मीनिंग देने के बाद राइट टू चूज़ क्या है इसकी मीनिंग देने के बाद आप दूसरा ये देखोगे। ऐसे ही राइट टू सीक रिड्रेसल भी है। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब अगर आपको उसके बाद आप देखना कंज्यूमर जब वो एक्सप्लॉइट होता है तो कहाँ जाना होता है। कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है तो आजकल कंज्यूमर फोरम बोले बना है। कंज्यूमर फोरम क्या है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। फोरम मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन,
जो कंज्यूमर्स जो एक्सप्लॉइट हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन लोग को गाइड करता है कि किस तरह तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे। सारा कंज्यूमर लिटरेट नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं है कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाए, कैसे फिल करे सारा ये, तो वो लोग उसको गाइड कर देते हैं कि तुम लोग कैसे कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे और कैसे। ऐसे ही कंज्यूमर कोर्ट एक फोरम हमारा कंट्री में बहुत सारा बना है। वो कुछ गवर्नमेंट का होता है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ मेनली होता है, और गवर्नमेंट जब देखता है कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ अच्छा काम कर रहा है, कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर को अच्छे से गाइड कर रहा है, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देता है कंज्यूमर फोरम को कि इस हिसाब से आप कंट्री में पूरा कंज्यूमर के लिए काम करो, कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, जो कि एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर को गाइड करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कंज्यूमर फोरम। ठीक, ऐसे ही बहुत सारा कंज्यूमर को फोरम है हमारा कंट्री में जो रिप्रेजेंट करने के लिए कंज्यूमर को, हर कंज्यूमर को राइट्स है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, ठीक है, और रिप्रेजेंट करने के लिए कंज्यूमर फोरम उसको हेल्प करता है। ये हो गया राइट टू रिप्रेजेंट, अगर एक्सप्लॉइट होता है तो अपना को आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। और एक हो गया राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब टू गेट द कंपनसेशन वन कैन गो टू द कोर्ट, ओके, इफ इट इज गेट हार्म्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एनी सर्विसेज और एनी गुड्स। उसी हिसाब से आपका बुक में एक दिया गया है, वो दिया गया है आपका प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक आदमी था जो अपनी बेटी की शादी के बारे में मनी ऑर्डर कर लिया था घर में पैसा, लेकिन उसकी बेटी के पास उसका पैसा पहुंचा नहीं। शादी की डेट आ गई फिर भी पैसा पहुंचा नहीं। बार बार पोस्ट ऑफिस के पास जाता प्रकाश, बार बार पूछता, पोस्ट ऑफिस वाला उसको सीधे मुंह में जवाब नहीं देते। 1 महीना 2 महीना बीत गया, उसके बाद जब पैसा नहीं पहुंचा, शादी भी बहुत मुश्किल से प्रकाश की बेटी उसको मैनेज की, लेकिन नहीं पहुंचा, तो प्रकाश क्या किया, जाके कोर्ट में केस फाइल किया कि ना मेरे को ये लोग मेरा पैसे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि पहुंचा कि नहीं, दूसरे लोग कोई मेरे को कोई, मैं जब जाता हूँ बार बार तो कोई आंसर नहीं देता है। इसके बारे में वो गया और फॉर्म लिया, फिल किया और उसमें जाके कंज्यूमर कोर्ट में दिया। कंज्यूमर कोर्ट में जब दिया, कंज्यूमर फिर पोस्ट ऑफिस वाले को गिल्ट माना और मान के प्रकाश को पैसा भी उसको वापस मिला, और उसके बाद उसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था एज ए लीगल कंपनसेशन वो भी उसको वापस मिला। इस तरह कंज्यूमर का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट हमारा कंट्री में होता है। इसको छोड़ के हमारा कंट्री में कोपरा गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारा कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको देखे हो, आपको सोशल एडवर्टाइजमेंट सारा टीवी में देख देता है। जागो ग्राहक जागो, अमिताभ बच्चन का आप देखे हो, हॉलमार्क, अगर कोई चीज़ खरीदते हो, सोना वगैरह खरीदने जाते हो तो हॉलमार्क देखना चाहिए। इंडस्ट्रियल आइटम खरीदना चाहते हो तो ISI मार्क देखना चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो एग मार्क देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी हमारा कंट्री में है। जो अब मैं क्या क्या बोली, गोल्ड के लिए या कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क, और कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या, एग मार्क। ये सारा देखना, ये सारा कुछ मोनोग्राम सारा मिलेगा, वो सब हाथ में आपको ड्रॉ करना है। बार बार आप याद रखना, दिस प्रोजेक्ट फाइल विल बी इवैल्यूएटेड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर मटेरियल यूज्ड, वॉट एवर अवेलेबल मटेरियल्स आर देयर। ये लॉकडाउन का पीरियड है, बाहर नहीं जा सकते आप लोग। कुछ आप जैसे ड्राइंग पहले क्या करते थे, इंटरनेट से निकालते थे, कट कर देते थे। आपके घर में प्रिंटर है तो ठीक है निकालो, नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ये कर दो, कुछ के स्टडीज़ निकालो इंटरनेट से, लेकिन उसका प्रिंट आउट मत निकालो। आप क्या करोगे, उसको ड्रॉ करो, जैसे मोनोग्राम सारा ड्रॉ कर सकते हो, हॉलमार्क ड्रॉ कर सकते हो, जागो ग्राहक जागो, ये सारा जो स्लोगन है ये सब ड्रॉ कर सकते हो, और उसको ड्रॉ करके उसको पेस्ट करोगे। ओके, ये पेस्टिंग वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार बोल रही हूँ, हैंडमेड होना चाहिए, वरना आप कुछ 3D डायग्राम्स बनाओ, कुछ कलरफुल बनाओ, कुछ पैकेट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कुरकुरे के पैकेट हो गया, या आपका बुक का हो गया, और या आप कोई ऑयल का है जहाँ तुम्हारा ISI का सब सिंबल्स रहेगा, सारा सिंबल्स मोनोग्राम, उसको भी कट करके आप पेस्ट कर सकते हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट। I told you, I discussed everything in this video regarding this project. Please go through it, and once again I am telling you, it is not only meant only for the project, it is also sometime what the board is doing. Though from this chapter board is not supposed to give the question, but sometime it is giving. How it is giving? Based on this knowledge, it is क्या करता है, इस चैप्टर के नॉलेज को दूसरे चैप्टर के साथ
जैसे आपका ग्लोबलाइजेशन बोल के एक चैप्टर है, उसके साथ मर्ज करके एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डेवलप कर देगा और आपको दे देगा। तो आपकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए पहले इस चैप्टर को अच्छे से अपने बुक से पढ़ लेना, फिर इंटरनेट से सर्च करना, सर्च वर्क करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद आप बनाओगे प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। प्लीज़ go through it, okay, clearly, and go through the book, net, and then do it. Thank you.